The classification based on electronic configuration as S block, P block, D block and F block. ये हमने कर लिया. मैंने आपको periodic position वगैरह सब बता दिया, right? This is where we are. I will just finish one more classification with you, and today we start discussing the periodic properties. Important part आज से हम चालू करेंगे. तो classification में जो हमने classification कर लिया, that was based on where the last electron is entering. Now the classification that I'm going to teach you, okay, is called as Bohr's classification. So, what is Bohr's classification? This is based on complete and incomplete energy shells. तो कितने energy shells complete है, कितने energy shells incomplete है, इसके basis पे ये classification है. I'll just change the marker. So based on this, we classify elements into 4 categories. पहला type है inert gases. तो Bohr classification में first type of elements are inert gases. So we already know their position, right? Your inert gases are present on extremely right hand side of the periodic table. And इनमें क्या है? Outermost shells are completely filled. And because of that, they are having stable configuration. They do not show much chemical activity under normal condition. पहले इनको inert कहते थे क्योंकि इनके compounds discovered नहीं थे. But later, compounds of these elements are discovered. So now we don't call them as inert because we know they do react, they do form compounds. और इनके जो compounds है वो हम पढ़ेंगे, chemical bonding में पढ़ेंगे, P block में पढ़ेंगे. तो इनर्ट गैस xenon के बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, क्रिप्टन के भी है, अर्गन के भी है. व्हाट इज ट्रूली इनर्ट टिल टुडे इज हीलियम एंड नियॉन. हीलियम एंड नियॉन आर ट्रूली इनर्ट टिल टुडे. बाकी रेस्ट ऑल आर रिएक्टिंग. ये ठीक है. अभी देखो, तो ये हो गया आपका इनर्ट गैस फर्स्ट काइंड. तो इसमें क्या है? आउटर मोस्ट शेल्स आर कंप्लीटली फील्ड. That is what is your inert gas, and you know the position. And that's what will make them highly stable. They have very stable electronic configuration. And do not show chemical activity under normal condition. ये आपके inert gases है. And position तो आपको इसकी पता ही है. The next class as per the Bohr's classification is representative or normal elements. मैम मुझे एक डाउट है. What is transition element? Transition elements. हाँ करेंगे ना, ये आएगा. इसका अगला कैटेगरी वही है, मैं बात कर रही हूँ. अच्छा. So hold on. So second category is representative or normal elements. So what are they? They are the elements
where atoms have all the shell complete except outermost shell, which is incomplete. So इनमें all the shells will be complete except outermost shells. So the number of electrons in the outermost shell varies from 1 to 7, and their configuration in the outermost shell will vary from NS1 to NS2 NP5. Do you understand which elements I'm talking about? So which are these elements? These are the elements present in 1A to 7A. So element present in 1A to 7A belongs to this category. तो ये कौन से एलिमेंट हो गए? S ब्लॉक पूरा आ गया and P ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस फैमिली. तो S ब्लॉक के 2 फैमिलीज और P ब्लॉक के 5 फैमिलीज, टोटली 7 फैमिलीज are called as representative elements or normal elements. इनके सारे shells complete होते हैं except the last one. All shells are complete except the last one. Then the next category, third category that I'm discussing is transition elements. So what are transition elements? In these metals, in these elements, the outermost shell and the penultimate shell are incomplete. तो इसमें 2 shells incomplete. Outermost and penultimate shells are incomplete. इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया था. So what is the general configuration for these elements? outermost में होगा NS, maybe 1 or maybe 2, और penultimate होगा N-1 D 1 to 10. And you know the position in the periodic table. But transition elements का D partly filled होना चाहिए. तो इसके लिए इस definition में, so what are the groups coming? It is
group 3 to group level only. And most important, group 12 is not included as transition element. जो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ग्रुप 12 मतलब the family of zinc, cadmium and mercury. ये जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की जो फैमिली है वो हम डी ब्लॉक में नहीं इंक्लूड करते क्योंकि उनका d orbital full है. It's not partly full, it's completely full. And they show different properties जिसको हम typical transition properties कहते हैं. These elements do not show those properties. They show different properties. And that's the reason they are not called as transition elements. तो ये हो गए आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स which is D block except group 12. And then the fourth type in Bohr's classification is inner transition elements. So these elements will have 3 outermost shell incomplete. So it is the last penultimate and pre-penultimate. तीन शेल्स इनके इनकम्प्लीट रहते हैं. इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एवरीबॉडी नोज. will be ns2 n-1d, sometimes 0, sometimes 1, and n-2f 1 to 14. So what are these elements? Two series, lanthanides and actinides. So is this classification clear to everybody? Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो बेटा. आप फोर्थ वाले का सेकंड पॉइंट एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कोई एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला? किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर ट्रांजिशन का. हाँ. तो बेटा एफ ब्लॉक में क्या किया लास्ट लेक्चर? आना तो दुर्गेश. शिखर. आके नहीं. हाँ. Some issue with the camera. So F block का configuration एकदम एग्जाम्पल के साथ लिखवाए हैं. सीरियम एवरीथिंग वही है. और क्या है? इनर ट्रांजिशन इज सेम एज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू लास्ट लेक्चर फॉर एफ ब्लॉक. इट्स एफ ब्लॉक. यस मैम, अब देखा. ठीक है.
मैम आज हमने जो पढ़ा है वो टेस्ट के पोर्शन में है, मतलब मेजर टेस्ट के लिए? हाँ बेटा है। अच्छा ओके। कितना टेंशन लेते हो मेजर टेस्ट का? मैम क्या क्या आएगा उसमें, मतलब कौन से चैप्टर्स? हाँ मैम। कितने चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों को मैंने? मोल और पीरियोडिक चल रहा है बस। और क्या करूं मैं, यही पूछूंगी। टेंशन ना लो बेटा, जो पढ़ाया है ना उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, जो नहीं पढ़ाया है बिल्कुल नहीं पूछूंगी। तो whatever questions you will get, 100%, 110% comes from what is taught to you. उसी को अच्छे से आंसर दे दो बस। जो पढ़ाया है उसमें तो हमको फुल नहीं आते है ना, आते हैं क्या? तो नहीं पढ़ाया है पूछ के क्या करूं तुम लोगों को मैं? नहीं पूछूंगी बेटा, डोंट एक्सप्रेस। होल कंसेप्ट तो अभी कितना हो गया, हमने कितने टेस्ट लिखे, अभी तो एक्सपर्ट करनी चाहिए आप लोग मोल कंसेप्ट में। चलो आगे बढ़े हैं। हाँ मैम। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। यस मैम। मैम वो एफ के आगे क्या लिखा है? किधर? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सेकंड पॉइंट में। एफ के आगे कुछ नहीं लिखा है, 1 to 14 लिखा है बस। अच्छा ओके। हाँ मैम हो गया। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आज क्या पढ़ना है? तो हमने देखो बेसिक पीरियोडिक टेबल कर लिया, और मैंने आपको उसके एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन वगैरह बेसिक चीजें सब मैंने आपको समझा दी। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक क्या क्यों कहते हैं? व्हाट इज पीरियोडिक इन दैट? व्हाट इज रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स? प्रॉपर्टीज। तो यही पीरियोडिसिटी अभी हम समझने वाले हैं। So this is the main part that starts now. So we saw that हर ग्रुप में the elements are differing with 2, 8, 8, 18, 18 and 32. और इसका मतलब ये डिफरेंसेस सिमिलर प्रॉपर्टीज विल रिपीट। जो एलिमेंट एक ग्रुप में है उनका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है का मतलब है कि उनके प्रॉपर्टीज भी क्या है? सिमिलर है। दे आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज because they are having same last shell electronic configuration. तो ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस में है। जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो एक ग्रुप में है, मतलब उनके प्रॉपर्टीज भी सेम है। और यही अभी हम पढ़ेंगे एक एक करके।
So in a group, when we are talking about elements, okay, the chemical property as well as so many physical properties will be almost same. And that is what I am going to discuss in the topics that I will teach you after this. So I start with the first thing, very crucial, discussing with you screening effect, then effective nuclear charge, फिर gradually I'll discuss atomic and ionic radii, and then some more properties like ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, and so on. And all these are periodically repeating in our modern periodic table. So let us start understanding the first property, screening effect or shielding effect. स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, अभी मैं इसको समझाती हूँ, इसका डेफिनेशन भी आपको बताती हूँ. डेफिनेशन क्या है? दिस इज द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by the nucleus on the valence electron due to presence of electrons in the inner shell. मैम लेफ्ट से थोड़ा कट रहा है. क्या करूं? थोड़ा कट रहा है. अच्छा, आई मूव इट. ठीक है, अभी दिख रहा है बेटा? हाँ मैम. यस. ओके. मैम आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो मैम? हाँ हाँ करूंगी ना बेटा, सिर्फ अभी लिखा है, बहुत एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान दे अभी. हाँ. तो इसका मतलब क्या है? एक न्यूक्लियस लेती हूँ, an atom say which has 5 shells. न्यूक्लियस has proton, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है. ये आपका न्यूक्लियर चार्ज जिसको कहते हैं वो ये है. और ये न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. So my question to you is, the attractive force which a nucleus is exerting on the electrons of these shells, is it equal? No. जो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या वही फोर्स फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस होता है? नो मैम. नहीं होता. मतलब देयर इज डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन as we start going away from the nucleus. It is maximum experience for a first shell electron.
still less for second, still less for third, और कम fourth के लिए, और भी कम fifth के लिए. क्यों ऐसे होता है? क्योंकि when suppose I am talking about the valence shell, last shell electron, तो ये last shell electron और न्यूक्लियस के बीच में 4 शेल के इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं. And they are like this, they are blocking, they are shielding the nuclear charge from reaching outermost electron. और इसी blocking या shielding को screening effect कहते हैं. तो हमेशा inner shell के electrons outermost shell के electrons को screen या block करेंगे. हाँ, आपने जो ब्लॉक करने वाला बोला एक और बोल सकते हैं. ब्लॉक करने वाला क्या? फोर्थ का इलेक्ट्रॉन्स आने पहले के इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक करेंगे, वो मेरे को समझ में नहीं, बार रिपीट कीजिए ना. बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, देखा है ना तुमने? हाँ हाँ. तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आएगा और वो न्यूक्लियर चार्ज आगे पास होने से रोक देगा. अच्छा हाँ समझा. दिस इज व्हाट इज ब्लॉकिंग. यस मैम. तो सेकंड शेल भी है तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ब्लॉक करेंगे. और फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल. तो इस फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स रिसीविंग द न्यूक्लियर चार्ज फुल, आंसर इज नो. यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को कुछ हद तक ब्लॉक करेगा फ्रॉम रिसीविंग न्यूक्लियर चार्ज. So when electrons are moving some or the other way, they are blocking the nuclear charge received by other electrons. और इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट. अभी किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना आपका स्क्रीनिंग या शील्डिंग ज्यादा होगा. हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर शैल बी द स्क्रीनिंग इफेक्ट. Yes, yes. यस. मैम आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है. तेरा भी क्रैक हो रहा है. अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम होगा. हाँ बेटा, जितने नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा. ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ मैम. ओके. तो ये अभी मैंने क्वालिटेटिवली बोला कि कम ज्यादा. When I'm saying less or more, it's a qualitative way of talking. Yes, ma'am. तो अभी हम क्या करेंगे? अभी मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ? I am going to teach you a quantitative way of measuring. हम कम ज्यादा को एक्चुअली मैग्नीट्यूड से समझेंगे. We will try to understand with the help of some calculations. तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं in the form of screening effect constant. So I'll teach you the calculation of screening effect constant. The screening effect constant we will denote by sigma. And there are some rules with the help of which we will understand magnitude of sigma.
और उन रूल्स को स्लेटर रूल कहते हैं. Sir teach you how to calculate magnitude of sigma. और एक चीज डिस्कस करनी है. तो सबको ये समझा कि जितने इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे स्क्रीनिंग बढ़ते जाएगा. यस मैम. Yes, ma'am. ओके. अभी आपको एटॉमिक में ये भी बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. Yes, हाँ ma'am. मैम. है ना. आपने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के शेप समझ लिए इन एटॉमिक. यस मैम. ओके. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है also will make a difference in screening as their shapes and density of electron cloud is not same. Your s orbital जो होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. वही p ऑर्बिटल डिफ्यूज है, d ऑर्बिटल और डिफ्यूज है और f ऑर्बिटल और भी डिफ्यूज है. मतलब स्क्रीनिंग ओके. और एक फैक्टर पे डिपेंड करता है कि which orbital electrons are screening. If it is s, then screening is maximum, then is for p, then is for d, and then is for f. Is this clear? यस मैम. ओके. तो अभी मुझे आपको क्या समझाना है, सिग्मा का कैलकुलेशन है ना. जितना सिग्मा ज्यादा उतना ऑब्वियसली क्या ज्यादा हो जाएगा आपका. स्क्रीनिंग इफेक्ट. Yes. So sigma is the magnitude, okay, that we are going to understand for screening effect. Higher is sigma, more is screening effect. But actually numbers we will check. और उसके लिए मुझे आपको स्लेटर रूल समझाने पड़ेंगे. स्लेटर रूल्स आर द रूल्स which have been designed to calculate sigma. अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिटल चेंज होने से स्क्रीनिंग चेंज होता है. तो स्लेटर रूल s और p ऑर्बिटल के लिए अलग है और d and f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग है. तो मैं पहले आपको समझाती हूँ. फॉर ns and np orbital electron we are discussing Slater rule now.
तो सबसे पहला पॉइंट कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एलिमेंट का, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में बाय फॉर्मिंग पर्टिकुलर ग्रुप हमको लिखना है. Okay, so that we can calculate by using Slater rule in a easy way. Electronic configuration decide तो above principle, Hunt's rule और Pauli's exclusion principle से होता है, जो आपको सिखा के हो गया. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, बट क्या चेंज होगा, उसको रिप्रेजेंट करने की पैटर्न चेंज होगी. So first point is write the electronic configuration of the element in the following order. तो ऐसे करके ग्रुप में हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इस सीक्वेंस में लिखना है. एंड द सीक्वेंस इज नॉट एट ऑल योर अबव प्रिंसिपल एनर्जी लेवल सीक्वेंस नहीं है. इसमें रादर जो शेल न्यूक्लियस के पास है उसको पहले लिखा है, एस और पी इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रुप में डाला है और डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रुप में डाला है. हाँ, वैसे एसपी और डीएफ क्यों अलग अलग हैं? वही करना है. क्यों अलग अलग है? क्योंकि एसपी का जो स्क्रीनिंग है वो अलग होता है, डी और एफ का अलग होता है. एसपी का ज्यादा होता है, डी और एफ का अलग होता है. अच्छा, पहले रूल समझ लो, बाद में डाउट पूछना. अभी रूल समझ लो सब. तो अभी ये रूल में क्या समझा रही हूँ. सपोज आई एम हैविंग अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन either in s or p orbital, and then I'm trying to calculate the screening effect on it. So how to do it is what I'm trying to teach you. So I first select a s or p electron and I try to explain you this. So suppose I'm selecting an electron present in 4s. तो किसी एटम के 4s में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ. तो सबसे पहले मुझे उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा. अभी दूसरा और इंपॉर्टेंट रूल देखो. जो इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट ऑफ दिस ग्रुप है, तो व्हाट इज टू द राइट? जो इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के राइट में है, मतलब ये राइट हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप के राइट में है उनका कंट्रीब्यूशन 0 होता है फॉर स्क्रीनिंग. ओनली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट will contribute.
ऑब्वियसली अगर मैं फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग गिन रही हूँ तो न्यूक्लियस और फोर्थ शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वही स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट करेंगे और आगे के नहीं। यस मिस। यस मैम। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये Yes, नेक्स्ट सर ma'am. वापस बता सकते हो? ये नेक्स्ट रूल है, इलेक्ट्रॉन्स टू द राइट ऑफ NS एंड NP ग्रुप। और सिर्फ लेफ्ट वाले कंट्रीब्यूट करेंगे। अभी स्लेटर रूल का मतलब क्या है? स्लेटर रूल का मतलब ये है कि एक सिग्मा के लिए एक नंबर कैलकुलेट होगा और वो नंबर के लिए कुछ assumptions, कुछ फिक्स कैलकुलेशंस हमको सीखने हैं। तो थर्ड रूल टॉक्स अबाउट दोज कैलकुलेशंस। तो अभी मैं 4s इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये फोर्थ शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो भी स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फोर्थ शेल को मैं n शेल कहूंगी। फिर मेरा थर्ड शेल हो जाएगा n-1, मेरा सेकेंड शेल हो जाएगा n-2 एंड सो। तो जिस शेल में हम स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं वो nth शेल है, उससे एक काम n-1, उससे दो काम n-2 and so on. So I'm calculating on fourth shell. So 4s and 4p are my nth shell. तो रूल 3 कहता है all the electrons in NS and NP group contribute to the extent 0.35 each to the screening constant. आप रिपीट कर सकते हैं एक बार रूल 3? लिख रही हूँ बेटा, देख लेना। यस मैम। So I've written all the electrons in NS and NP group contribute 0.35 each to the screening constant. इसका मतलब क्या है? ये 4s2 है और ये 4p6 है सपोज, और इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन्स है और मैं 4s के एक इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा या स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रही हूँ। तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे रिमेनिंग, इस शेल में रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? 0.35। तो टोटली 7 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होने वाला है 0.35 into 7 फॉर सिग्मा। समझ में आ रहा है? मैम ये सिर्फ NS और NP के लिए रहता है? हाँ बेटा, स्पेसिफिक लिखा है, NS और NP के लिए ही ये नंबर होगा। जैसे एक बार आप फिर से समझा सकते हो? बेटा मैं सॉल्व करूंगी ना, मुझे रूल लिखवाने दे, जब हम ये सॉल्व करेंगे ना एकदम समझ में आएगा। तो फोर्थ शेल का कैलकुलेट कर रहा है तो उसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 मानना है।
और अगर ये शेल फर्स्ट है मतलब मैं 1s इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, तो इसके लिए ये कंट्रीब्यूशन 0.3 हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर 1s फॉर विच द वैल्यू इज 0.3। मैम 7 कैसे आया? सेवन कैसे आया? 4s2 4p6 दिख रहा है, तो हाँ टोटल मैम। इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं तेरे को? 8। अभी 8 हाँ में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को 7 स्क्रीन करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन ओके। अपने आप को तो अच्छा स्क्रीन नहीं करता ना, हाँ तो वो एक इलेक्ट्रॉन को उस शेल के जो रिमेनिंग 7 स्क्रीन कर रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन 0.35 इंटू 7 गिनना है। ओके तो थैंक यू मैम। फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, अभी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा, यस मैम। तो उसके भी रूल है। तो नेक्स्ट रूल इज फॉर all the electrons in n-1th shell contribute 0.85 each। मैम राइट में बोर्ड कट रहा है, थोड़ा साइड करो ना राइट में। हाँ मैं करती हूँ बेटा। हाँ मैम दिखा, थैंक यू। मैम अभी लेफ्ट से कट रहा है। लेफ्ट में कुछ लिख नहीं रही हो ना, राइट का लिख लो फिर लेफ्ट में कर अच्छा, देंगे। तो अभी n-1 शेल क्या होगी? अगर n शेल 4 है तो n-1 हो गई 3, तो 3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली कितना होगा? 0.85। तो सपोज 3 में D में 10 है, S में 2 और P में 6, टोटल इलेक्ट्रॉन्स in third shell are 18, then what is the contribution? 18 into 0.85 towards screening. And the last rule says all the electron in n-2, तो n-2 क्या हो गया? सेकेंड शेल and lower, इसके नीचे के जो भी शेल्स होंगे, so all the electron in n-2 shell and lower contributes 1 each to the screening. तो ये रूल कंप्लीट हो गए। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज करके स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तभी जो भी आपको नहीं समझ रहा है वो क्लियर हो जाएगा।
मैम और इसका कोई यूनिट है पर्टिकुलर ऐसे? नहीं, नो यूनिट, नो यूनिट. मैम ने वैल्यूज आई कहाँ से? वैल्यू क्या? 0.35, 0.85 और 1 कैसे आया? क्या बोल रहा है? ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं 0.85, 0.35 और 1, हाँ, वो कैसे आए? वो कैसे आए बेटा? वो कुछ कैलकुलेशन करके एक नंबर डिसाइड किया कंट्रीब्यूशन के तरफ, so that you know we can have some idea of magnitude. कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, फिर और बाहर का कम, और बाहर का कम, ऐसे करके ये वैल्यूज डिसाइड किए हैं. Of course there is no mathematical or some kind of a proof to these values. So how do we calculate now? I'm solving one problem with you so that you understand how to calculate. So let us do calculation of screening constant, say for alkali metals, for valence electron. तो अभी अल्कली मेटल में सपोज मैं एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, देन यू गो ऑन सॉल्विंग. सो आई वांट टू कैलकुलेट फॉर लिथियम. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो गया. इस पैटर्न में वो हो गया 1s2 2s1. मैं कौन से इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रही हूँ? 2s. So 2 is my nth shell. Do I have any other electron here other than the one which is on which we are calculating? We don't have. Everybody agree? मैम अभी लेफ्ट साइड पे बोर्ड कट रहा है मैम. हाँ बेटा. तो nth शेल में और इलेक्ट्रॉन नहीं है. यस मैम. तो वो 0.35 वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि n शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर ये 2s2 होता तो n शेल में फिर एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दूसरे पे गिनना पड़ता. बट ये 2s1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं है. इज दिस क्लियर? यस मैम. यस मैम. आई गो अप. ओके, तो फिर मुझे n-1 ये नहीं आएगा, बट ये आएगा. व्हाट इज n-1? फर्स्ट शेल हियर
और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके स्क्रीनिंग की कैलकुलेशन में आएगा 2 into 0.85 और इसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया 1.7। मैम लेकिन 1s में 0.3 होता है ना? नहीं बेटा, वो 1s में 0.3 कभी होगा जब ये वो 1s nth शेल होगा। क्या ये nth शेल है? ये n नहीं, माइनस n-1 है। n-1 है। तो n शेल का मतलब है मैं 1s के एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन देख रही हूँ, तो वो इंस्टेड ऑफ 0.35 मुझे 0.3 पकड़ना है। इज दैट क्लियर? हाँ मैम। So try doing for sodium now. और फिर पूरे फैमिली का करते जाओ।
हम सोडियम का 8.8 है। हाँ बेटा 0.8 हाँ आया। आ रहा है। हाँ सोडियम का है। और मत- सोडियम के लिए ये ऐसा हो जाएगा, तो n शेल का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं बट n-1 शेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स है एंड विच आर कंट्रीब्यूटिंग 0.85 और n-2 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है विच आर कंट्रीब्यूटिंग 1, so your total will be 8.8 here. Is everybody understanding this? यस मैम। yes मैम। मैम के 11.25 है। नहीं बेटा 16.8 है मैम। हाँ yes perfect perfect. हाँ 16.8 मुझे भी आया। हम पोटेशियम का 16.8 है। हाँ बेटा मैम रुबिडियम का 34.8 है। पोटेशियम के लिए मैम ये पोटेशियम कर सकते हैं। तो n-1 ये हो गया, n-2 एंड लोअर के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम 16.8 होगा ना। 8 आता है 8 हाँ। 5 मैम रुबीडियम का 24.8 है। नहीं बेटा कुछ कैलकुलेशन एरर मारा आपने। मैम 34.8। यस
मैम 53.15. 2.8. तो ये रूल समझ में आ गए कैसे कैलकुलेट करने हैं? यस मैम। हाँ मैम। चलो इसकी और प्रैक्टिस करते हैं. यू डू कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर मेंबर्स ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स फॉर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. मैम किसके लिए रिपीट कीजिए? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए मैम या? यस, अच्छा। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स. मैम हाइड्रोजन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन है उस पे कैसा स्क्रीनिंग होगा? हाँ 0 होगा ना? हाँ, हाँ। हम लिथियम और बेरिलियम का सेम होगा क्या? लिथियम और बेरिलियम का सेम कैसे होगा बेटा? लिथियम के लिए तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s1. So I'm calculating on 2s electrons, so it is 2 into 0.85. ये ऑलरेडी कर लिया हमने 1.7. बट बेरिलियम के लिए ये हो जाएगा 1s2 2s2. तो 2s के एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे 0.35 वाला पार्ट आ जाएगा. मैम ये 0.35 वाला कभी अप्लाई होता है? जब भी उस शेल में, जिस शेल के इलेक्ट्रॉन पे आप स्क्रीनिंग गिन रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन है तभी. अभी 2s2 हो गया मतलब 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का आप स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हो, उसको दूसरा स्क्रीन करेगा. हाँ 2s1 में एक ही है, तो एक ही में नहीं होगा कैलकुलेट? एक ही में एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग करने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना. इलेक्ट्रॉन अपने आप को थोड़ी स्क्रीन करता है. एक इलेक्ट्रॉन है जिसपे तू स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए कुछ होना चाहिए. जितने इलेक्ट्रॉन से उतने का तो गिनेगा, नहीं है तो नहीं गिनेगा. हाँ मैम.
मैं स्क्रीन को थोड़ा राइट में ले सकते हो? हाँ ले रही हूँ। मैम बोरॉन का 2.4 है। यस बेटा। तो मैम बेसिकली सेकंड पीरियड में सबका 0.35 से ही डिफर होगा। बढ़ता जाएगा। हाँ 0.35 से। हाँ क्योंकि मैम। एक इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा है और हाँ सेम मैम। शेल में ऐड होने से 0.35 से उस इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा। तो हाँ अभी मैं मैम। यहाँ पे लिखूंगी 2 into 0.35, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे दूसरे दोनों का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करूंगी, इनर का हाँ सेम रहेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.4।
मैम ये हम जो कर रहे हैं वो खाली एनएस और एनपी तक ही वैलिड है ना? हाँ, एनएस और एनपी। अभी डी और एफ के रूल करवा रही, वही मैं बोलने वाली थी। अभी एनएस और एनपी समझ में आया हाँ मैम। कि अगर एस और पी ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन है तो उसका कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ आई एम गिविंग यू द रूल्स फॉर डी एंड एफ, अबाउट टू से द सेम थिंग टू यू। तो अभी रूल देखते हैं फॉर डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबका राइट आया? यस मैम। Yes, यस ma'am. मिस। तो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और उस पे हमको स्क्रीनिंग कैलकुलेट करना है। तो व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू यूज टू कैलकुलेट द स्लेटर कांस्टेंट? तो उसमें जो रूल मैंने 1, 2 और 3 लिखवाए थे एनएस और एनपी के लिए, दे रिमेन सेम। तो रूल नंबर 1 क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखो। रूल नंबर 2 था कि जो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स राइट है उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जो न्यूक्लियस और उस शेल के बीच वाले हैं उनका ही कंट्रीब्यूशन होता है। और रूल नंबर 3 है कि उस ग्रुप के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 है। ये तीनों रूल एज इट इज। सो रूल नंबर 1, 2 एंड 3 रिमेन्स सेम। और जो 4 और 5 थे, रूल नंबर 4 एंड 5, they will be replaced by rule 6. तो मुझे आपको रूल 6 बताना है। तो रूल 6 कहता है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्रुप लाइंग लेफ्ट टू एनडी एंड एनएफ, मतलब सारे इनर शेल्स, वो n-1 हो, n-2 हो, जो भी, everything between the given shell and nucleus, all will contribute 1 each to the screening. So I'm writing this rule. All the electrons in the group
तो अभी इसको अप्लाई करेंगे। मैम लाइंग लेफ्ट टू एनडीएनएफ मतलब वो थोड़ा नहीं समझा। लाइन लेफ्ट मतलब जब भी तुम ग्रुप बनाते हो तो लाइन लेफ्ट, so I'm talking about 2 then line left. ओके हो गया? तो पहले कॉपर 30 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फर्स्ट वाले का आंसर 17.95 किसका बेटा? फर्स्ट वाला। नहीं बेटा, मैम 15.6। नहीं। मैम 21.15। ये है कॉपर, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो अगर हम मुझे 3D का 22.15 आया। बेटा कैलकुलेशन में एरर है तेरे। 3D इलेक्ट्रॉन, तो आई एम कैलकुलेटिंग नाउ फॉर 3D इलेक्ट्रॉन। जो पहला कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो 3D इलेक्ट्रॉन इधर है, तो
3D के शेल में, मतलब थर्ड शेल में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है उस ग्रुप में? 9। 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा? 0.35 हाँ 9। हाँ किया ये किया So it will be 9 into 0.35 and all electrons lying to the left. अभी ये वाला lying to the left, ये सारे कितने हैं? ये 18। तो इनका कंट्रीब्यूशन 4.95 4 पॉइंट कैसे आएगा? 21.15। Yes. हाँ 21.15 मैंने 3s 3p और 3d को एक ग्रुप में ले लिया था, उससे रॉन्ग हुआ फर्स्ट वाला। वो वैसा नहीं लेना है ग्रुप, तो पहला रूल था ग्रुप कैसे हाँ। बनने हैं उसका? हाँ ग्रुपिंग sp अलग रहेगा। और फॉर 4s इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? 4s में पहले वाले 4s के लिए तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ 0.35 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो 4s के एक इलेक्ट्रॉन 28 आना चाहिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन का आता है, तो 0.35 वाला रूल नहीं, बट 0.85 वाला लगेगा। तो 18 into 0.85 28 18 into 0.85 और ये 10 into 1। 0.85 कैसे आया मतलब? बेटा अभी ऐसा s क्या इलेक्ट्रॉन पे s और p का रूल लगेगा। अच्छा अच्छा हाँ समझ में आया? हाँ 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 इसके लिए दोनों एक साथ पूछ लिए। तो क्या आंसर आ रहा है ये? हाँ 26.85। नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? 25.3 मैम 25.3 है मैम। और 25.3 आएगा। 25.3 हाँ। क्लियर यहाँ तक? So we learned how to calculate sigma. Yes, And ma'am. what we saw, the magnitude of sigma in case of S and P block element increases in a period as well as in a group as atomic number increases. So this is the conclusion. मैम 4s का एक बार दिखाओ ना, समझ में नहीं आया। 18 into 0.85 कैसा आया? बेटा S और P का रूल नंबर 4 क्या है? n-1 में कंट्रीब्यूशन 0.85 लेना है। पूरे वही लिया चीज़ मैंने। लिखना।
और हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग अगर ऑर्बिटल में हैं तो दे आर डिफरेंटली अफेक्टेड, राइट, बेस्ड ऑन देयर प्रॉक्सिमिटी टू द न्यूक्लियस। अभी स्क्रीनिंग क्यों सिखाया मैंने, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ टीचिंग स्क्रीनिंग? क्योंकि स्क्रीनिंग से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड होता है। सो आई विल explain you how screening decides effective nuclear charge. I am clearing left hand side of the board. Effective nuclear charge we represent with Z star. And to calculate effective nuclear charge, we will be using a simple formula. Z star is Z minus sigma. So due to screening effect, the valency electrons are experiencing less attraction towards nucleus, and this brings decrease in nuclear charge Z. And actually the reduced nuclear charge को ही हम क्या कर रहे हैं, effective nuclear charge. तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ। मैम एक बार आप रिपीट कर सकते हैं फिर से, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा कुछ नहीं, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कैलकुलेशन दिखा रही हूँ, ध्यान दो बोर्ड पे। यस मैम। तो इन अ पीरियड कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो इन अ पीरियड का डेटा है सो इन अ पीरियड, देखो ध्यान दो, इन अ पीरियड में मैंने आपको सेकेंड पीरियड लिथियम से लेके 15 मिनट बताओ, 3 घंटा में करेंगे तो 3 घंटा पढ़ाएंगे। किसका ऑडियो ऑन है, प्लीज स्विच इट ऑफ, देखो कौन है वो। हम कोई तो हेमंत सर के नाम से आया है। हाँ डीपी भी था। मैम आपकी आवाज क्रैक हो रही है। मेरी आवाज क्रैक हो रही है, अभी ठीक है सब? अभी आ रही है। हाँ अभी आ गई। हाँ हाँ आ रही है।
तो फिर अल्कली मेटल्स के लिए तो सेम होगा ना इफेक्टिव। हाँ, तो अभी अपने पास क्या क्या डेटा है देखो, व्हाट ऑल द डेटा वी हैव ऑलरेडी हियर, वी विल चेक। तो इन अ पीरियड, ओके, लिथियम टू नियॉन हम देख रहे हैं सेकेंड पीरियड। अभी Z क्या है, लिथियम का Z3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। और इसका सिग्मा हमने कैलकुलेट किया है अभी, ये 1.7 था और 0.35 से इंक्रीज होता है 2.05, 2.4, 2.75, 3.1, 3.45, 3.8, right, and 4.15. तो फिर इसका Z स्टार क्या होगा, Z minus sigma, so it will be 1.3 here. So this I am calculating Z star, which is Z minus sigma. तो 3 minus 1.7 करना है, ये 1.3 हो गया, 4 minus 2.05 is 1.95, 5 minus 2.4 is 2.6, 6 minus 2.75 is 3.25, 7 minus 3.1 is 3.90, 8 minus 3.45 is 4.55, 9 minus 3.8 is 5.2, and 10 minus 4.15 is 5.85. तो अभी इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज +3 है, बट उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पे +3 नहीं पहुंचता, कितना पहुंच पाता है, 1.3 ही पहुंच पाता है। And as I am going to the right in a period, the effective nuclear charge goes on increasing. अभी मैं एक इन सब ग्रुप लेती हूँ, अल्कली मेटल्स का सब ग्रुप, जिसका हमारे पास डेटा है अगेन
ये सब हमने कैलकुलेट किए हैं, वही मैं लिख रही हूँ फिर से। फ्रांशियम का नहीं किया था, निकाल देती हूँ फ्रांशियम को। And see what becomes your Z star now. You'll be surprised to see Z star here. तो पहले केस में आपका Z star आ जाएगा 1.3 and then it's constant. तो इसका मतलब in a normal element, the magnitude of effective nuclear charge almost remain constant as we go down the group. मैम फ्रांशियम के लिए भी 2.2 ही होगा ना? हाँ बेटा, कैलकुलेट कर लेना घर पे। हाँ 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 So any doubt? तो आज मैंने स्क्रीनिंग आपको सिखाया, और मैंने आपको क्या सिखाया स्क्रीनिंग के साथ? We learned how to understand effective nuclear charge. What happens to effective nuclear charge as we move from left to right in a period, okay, of S and P block, that is your normal elements, and in a group. Okay, next lecture, obviously, I will be teaching you the next periodic property, that is atomic size. और ऐसे करके ग्रेजुअली हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते जाएंगे। एनी डाउट एनीवन हैज? नो मैम। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू एवरीबॉडी नेक्स्ट वीक। मैम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए अलग होगा फिर, मतलब बढ़ेगा हाँ बेटा, या फिर कुछ? अलग होगा, सब अलग होगा, वो जैसे आगे चलेंगे डिस्कस करूंगी। तो अभी ये तो कैलकुलेशन हमने एस और पी के लिए किया है ना, बस इसको समझो। As we go ahead, we will go on discussing. ओके मैम। All clear? लेकिन वैसे देखा जाए तो फिर ये कम होना चाहिए ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाना चाहिए। अब नहीं हो रहा है ना, कम होते जाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो का क्या मतलब है? मतलब और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो तो करता है, बट इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज इजीली करता है। अभी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? न्यूक्लियर चार्ज कंपेयर कर रहे हैं जो सेम है। इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है आगे चल के बताऊंगी तुमको। अच्छा, मतलब और भी फैक्टर्स है डिपेंड करते हैं। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स है। अभी तो पहला फैक्टर समझा। हाँ मैम, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली as you go down
there is more and more ease of losing electron 100%. तो लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना और सीजियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, कहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? सीजियम से। बट उसका एक फैक्टर नहीं है जो मैं सिखा रही हूँ, और भी फैक्टर्स है जो करेंगे। ठीक है? यस मैम। ऑल क्लियर? यस मैम। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। Hi miss, thank Thank you you, miss. ma'am. बाय। बाय मैम। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू मैम।